Hi everyone, welcome back. Guys, this is lecture number 3 of Open Channel Flow. In this lecture, we will be proceeding further in Open Channel Flow. Before that, I have a question for you. So you have to answer this question. You have to mention correct option of this question in comment section. We discussed it already things related to this question, right? So let us move ahead and discuss the rest of the topics in Open Channel Flow. So first topic today is Reynolds number. We deal after Reynolds number we will discuss about Froude's number and so on. So the question arises here: what exactly Reynolds number is? What do you mean by Reynolds number? So Reynolds number is a very important number. Both Reynolds number and Froude's number have good significance in open channel flow as well as in fluid mechanics. So Reynolds number is a number which is used to differentiate or distinguish laminar flow and turbulent flow. So we can write here Reynolds number is a number which is used to distinguish laminar and turbulent flow, right? Laminar and turbulent flow. Okay. You said, what do you mean by Reynolds number? I said Reynolds number is a number which is used to distinguish laminar flow and turbulent flow, right? Okay. Now, what is laminar flow and what is turbulent flow? It is not our field of interest. You know already what's laminar and turbulent. You read about these numbers, these flows, laminar and turbulent flow, I hope in your course, in your BTech course. So I will just say laminar flow is a flow like sheet flow. Like when flow occurs in a thin sheets, it's called a laminar flow, and turbulent flow is a flow with very high speed where mixing of water takes place and energy will be lost, right? So now, what do you mean by Reynolds number? It is a number which is used to distinguish laminar flow and turbulent flow. Now we denote Reynolds number by Re, which we write here. So Re is a Reynolds number, and it is a ratio. In terms of ratio, we can write it is a ratio of inertial force divided by viscous force, right? It is a ratio of inertial force divided by viscous force. Viscous force. Okay, now what is inertial force? Inertial force is a force due to inertia. You know force F equivalent to mg. That is inertial force. You read about this in class 9th. So inertial force I can write here. Mass into acceleration is inertial force, and viscous force is a force due to viscosity. Viscous force is a force due to viscosity. And what is viscosity? Viscosity is a resistance force in fluid, or you can say resistance force exists in fluid which opposes flow, right? So viscous force due to viscosity, viscous force exists. So viscous force can be write mu. Mu is a coefficient of dynamic viscosity into velocity gradient. That means velocity upon length into A, that's area. So this is expression for Reynolds number. When we solve this expression further, we will get actual formula of Reynolds number which we use in fluid mechanics as well as open channel flow. So Re equivalent to mass into acceleration. In flow, what do you mean by mass? In flow, mass means volume into density, right? Into acceleration. What do you mean by acceleration? Acceleration is L by t square. Acceleration is rate of change of velocity, so dimension of acceleration is L by t square divided by rho into velocity. V divided by L into area, we can write L square. Got it? Now further we can write this is V is volume. Volume can be write is, we can write here first, we can write rho. V volume, it can be write L cube. We can write L cube instead of volume because dimension of volume is L cube into L square by T square whole divided by, we cancel L with L square, so we got mu into V into L. Till this point I hope you got the concept. Now further we can write rho as it is
L square, sorry, L cube into L, it become L power 4. So we can write L square by T square here into L square. We can write in this way as well, right? So in the denominator, we will get dynamic viscosity into velocity into L. So what do you mean by L square by T square? It is velocity square, because velocity is equivalent to L by T. The dimension of velocity is L by T. So L by T square means V square, right? L square by T square is V square. So here I can write here now RE equivalent to rho into V square into L square divided by rho into V into L. Now V square, V get cancelled. What we get here final, we get VL divided by dynamic viscosity. That is the final expression and most important expression. On this expression, questions had been asked in every exam, GATE, SSC, JEE, RRB, JEE, IS and so on. So rho VL by mu. This is the final expression of Reynolds number in terms of dynamic viscosity. So in terms of kinematic viscosity, nu, we can write this expression as well. So first I will give 2 stars for this expression. You have to memorize this expression. Reynolds number, value of our expression of Reynolds number is rho VL by mu. What is rho? Density. V is velocity of fluid. L is length of the channel, and mu is dynamic viscosity. So you know what kinematic viscosity. This is kinematic viscosity is equivalent to dynamic viscosity mu divided by rho, density. So we can replace this mu dynamic viscosity and we can put this nu, right? So in terms of nu, we can write Reynolds number R equivalent to rho VL divided by what is mu? Mu here, it is mu. Mu can be replaced by nu into rho. So instead of dynamic viscosity, we can write kinematic viscosity into rho. So kinematic viscosity into density will get cancelled. So finally we will get VL by kinematic viscosity. So another important formula of Reynolds number in terms of kinematic viscosity is V into L divided by kinematic viscosity. This is very important as well. सो दोनों फॉर्मूले मैंने रेनॉल्ड्स नंबर के यहाँ डिराइव किए हैं. दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू मेमोराइज बोथ द फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी. गेट में कभी क्वेश्चन आपको डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया जाएगा, कभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का दिया जाएगा और कभी डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया जाएगा. तब आप सिंपली क्या करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्या करेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू 1000 करेंगे. ये रहा आपका, ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो होता है. ठीक है, आप खुद देख लेना इसमें. ओके, सो ये रहा हमारा कंसेप्ट किसका, अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर. तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स. तो यहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो बात क्या है, ठीक है, समझ के चलना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. अगर हम कंसेप्ट समझेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू मेमोराइज थिंग्स इन फ्यूचर. देखो, रेनॉल्ड्स नंबर हमने यहाँ से आर ई का वैल्यू निकाला. अगर हम लिखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में वी एल बाई म्यू, और अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर को डायनेमिक विस्कोसिटी के टर्म में लिखेंगे रो वी एल बाई डायनेमिक विस्कोसिटी आएगा. अब यहाँ पे इस एल को देखिए, एल क्या है, लेंथ ऑफ चैनल. अब ओपन चैनल फ्लो के अंदर हम क्या करते हैं, इस लेंथ को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं एक वैल्यू से दूसरे वेरिएबल से, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ आर. ठीक है, क्यों करते हैं, देखो ओपन चैनल फ्लो में बहुत टाइप के चैनल होते हैं हमारे पास. अगर हमारे पास क्लोज काउंडुएट होगा, क्लोज काउंडुएट में ये जो एल होगा ये आर हो जाएगा, या कोई टैंक है समझ लो, उस टैंक में जो एल होगा वो एल आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा या डी हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल को हम डाया से या रेडियस से रिप्लेस करेंगे. तो क्या करना है हमें, यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो में, इन इतना भी ठीक है, इन ओपन चैनल फ्लो, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, इन ओपन चैनल फ्लो
आर ई इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई न्यू। ठीक है, v वेलोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। r हुआ हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस हुआ r इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर p। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर नहीं, वेटेड पेरीमीटर। अब ये क्या होता है, देखो अगर हम एक चैनल लेंगे रेक्टेंगुलर, अगर हम रेक्टेंगुलर चैनल लें तो रेक्टेंगुलर चैनल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सपोज ये पानी का लेवल है, दिस इज अ वाटर लेवल इन द चैनल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर चैनल। सो विड्थ ऑफ द चैनल विल बी b, और यहाँ से ये डेप्थ ऑफ चैनल होगा, यहाँ से चैनल के बॉटम से लेके जहाँ तक पानी है ये क्या हुआ y, इस साइड भी ये इतना y ही होगा। अब देखो एरिया क्या है इस चैनल का, एरिया मुझे देखो मुझे r निकालना है, r के लिए मुझे एरिया पता है, एरिया क्या होगा b इंटू वाई। ठीक है, b इंटू वाई लिखा, ठीक है, b इंटू मैंने y लिखा, डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर देखो वो एरिया वो पेरीमीटर चैनल का जो वेटेड है, ये वाला वेट होगा क्योंकि पानी यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक वेट होगा, और ये वाला साइड भी वेट होगा, तो b प्लस y और y, b प्लस 2y हो गया, b प्लस 2y हो गया। तो यहाँ पे जो r का वैल्यू b प्लस 2y होगा। अब ये कैसे हमें r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, b आपको दिया होगा चैनल का विड्थ, हाई डेप्थ ऑफ फ्लो आपका पता चलेगा पानी के लेवल से, तो यहाँ पे r निकल जाएगा, एरिया भी आपको इजीली फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से r निकला, r का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, उससे आपको पता चलेगा ये मेरा कौन सा फ्लो है। ठीक है, लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। अब देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा और बोलेंगे, हमने क्या बोला, हमने आपसे बोला r के वैल्यू से रेनॉल्ड्स नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं मेरा फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। अब इसी बात पे आते हैं, देखो अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस देन 500 होगा तो ये मेरा होगा लेमिनार फ्लो। क्या होगा, लेमिनार फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, आर ई लेस देन 500 मतलब वी एल बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी लेस देन 500 होगा। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो v है, वेलोसिटी 500 से कम है, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है, लेमिनार फ्लो होगा क्योंकि वो बहुत ही थिन लेयर्स में फ्लो करता है और स्लोली फ्लो करता है। अब दूसरी बात यहाँ पे, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम करेंगे जब आर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है, when Reynolds number value will be greater than 2000 it will be turbulent flow। ये क्या होगा, टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब देखो, अब आर ई 2000 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, इट मीन वी एल बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी ग्रेटर देन 2000। यहाँ से क्या आएगा, जो v जो है मेरा वेलोसिटी पानी का वो 2000 से ज्यादा है, 2000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा वेलोसिटी, बट यहाँ पे v ज्यादा है, तो v किस में ज्यादा है, टर्बुलेंट फ्लो में, जो बहुत ही फास्ट फ्लो करता है, जिसमें पानी का मिक्सिंग होता है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ये होता है। मान के चलो अगर आपको r का वैल्यू कहीं पे बराबर आया रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 5000 या 4500, तो आप इसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो है। अगर r का वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आपको कहीं पे आ गया 200, तो यू कैन से दिस फ्लो इज लेमिनार फ्लो। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 500 और 2000 के बीच में भी अगर लाई करेगा तो वो हमारा ट्रांजिशनल फ्लो होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ओपन फ्लो चैनल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्राउड्स नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओपन चैनल में। रेनॉल्ड्स नंबर से भी ज्यादा सिग्निफिकेंस है ओपन चैनल फ्लो में, क्योंकि फ्राउड्स नंबर के बेस में हम क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो को डिफाइन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ओपन चैनल फ्लो जो होता है इट अकर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। और जो मेरा फ्राउड नंबर होता है, ठीक है, जो मेरा फ्राउड नंबर होता है, ये जो फ्राउड नंबर है इसको एफ आर से हम डिनोट करते हैं। एंड जो फ्राउड नंबर होता है ये रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स।
ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स आ रहा है, ग्रेविटी फोर्स का ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा कीमत है, ज़्यादा कदर करते हैं हम ओपन चैनल फ्लो के अंदर, बिकॉज ग्रेविटी ही ओपन चैनल में फ्लो करवाता है पानी का। तो इसीलिए फ्राउड नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्राउड नंबर होता है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये रेशियो हम रूट के अंदर रखते हैं, ये बात। और फ्राउड्स नंबर से हम डिस्टिंग्विश करते हैं मेरा फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, ये बात आपको जहन में रखता है। आगे चल के हम बताएंगे वो, अभी आप इतना याद रखना, फ्राउड नंबर है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स का अंडर रूट होल, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फ्राउड नंबर का कुछ वैल्यू होता है, वो हम यहाँ से डिराइव करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हमें करना है। अब यहाँ पे देख लो, इनर्शियल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा m इंटू जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास इनटू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हुआ। अब यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सारी चीज़ों को रख के हम क्या कर सकते हैं, मास को हम रो v इंटू ए एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एम रो इंटू एल, ठीक, सॉरी गलती हो गई फिर से, रो वी इंटू ये हुआ मेरा एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई इसको रो वी इंटू यहाँ पे जी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर फ्राउड नंबर को हम यहाँ पे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू वी क्या हुआ, एल डिवाइडेड बाई एल, रो हुआ एल डिवाइडेड बाई, सॉरी वी हुआ, वी क्या होता है वॉल्यूम, ये एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। रो इंटू वी एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इंटू एक्सेलरेशन क्या हुआ, अभी पढ़ के आए, एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये डायमेंशन एक्सेलरेशन के हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, रो इंटू वी, फिर से रो इंटू एल क्यूब आ जाएगा, इंटू ग्रेविटी एज इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रखेंगे। यहाँ पे फिर से हमें क्या करेंगे, हम करेंगे अंडर रूट रो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे एल क्यूब है, इसको हम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड बाई रो एल क्यूब जी लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फ्राउड नंबर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे रो, यहाँ पे एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं से आया अभी बताया है, इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई रो एल क्यूब जी। अच्छा, यहाँ से हम काट लेंगे एल स्क्वायर को, तो हमें क्या बचेगा, रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो एल जी, रो से रो कटेगा, ठीक है। तो हमें फाइनली फ्राउड नंबर का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू एल सी लिखेंगे आप इसको, एल सी का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, अभी बताऊंगा, ठीक है आगे। इसको हम फर्दर v डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ जी एल सी लिख सकते हैं। तो यही मेरे फ्राउड नंबर का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे फ्राउड नंबर का क्या आ गया, तो फ्राउड नंबर एफ आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ जी इंटू एल सी। तो इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फ्राउड नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे v हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जिससे वो फ्लो कर रहा है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l जो है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, और जो एल सी है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब हुआ डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ, d से भी हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ, और ये होता है एरिया अपॉन टॉप विड्थ, एरिया अपॉन टॉप विड्थ ए डिवाइड बाई टी, ठीक है। टॉप विड्थ क्या हो गया, सपोज मेरा ये रेक्टेंगुलर चैनल है, इसमें पानी यहाँ तक, पानी का लेवल है, जो पानी का लेवल है, ठीक है, इसको हम टॉप विड्थ बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस, इसको टी बोलते हैं टॉप विड्थ, यहाँ से यहाँ चैनल का जो विड्थ है इसको बी बोलते हैं बॉटम विड्थ, और इसको टॉप विड्थ बोलते हैं, वही टॉप विड्थ यहाँ पे टी से लिखा मैंने, और ए हुआ एरिया ऑफ द चैनल, ठीक है। अब ये मेरा फ्राउड नंबर हुआ। अब मेरा फ्लो कब सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और सब क्रिटिकल हो सकता है, ये हम फ्राउड नंबर के बेसिस में बता सकते हैं, ठीक है। इस सारी चीज को मैं रब करता हूँ। तो अब हम आते हैं सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम फ्राउड नंबर के बेसिस में हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब फ्राउड नंबर की जगह एफ आर इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी एल सी लिख सकता हूँ, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा v अपॉन अंडर रूट
जी डी हाइड्रोलिक डेप्थ, और इसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं जी ए बाई टी एरिया अपॉन टॉप विड्थ। इतनी बात आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अब फ्राउड नंबर के बेसिस पे अगर फ्राउड नंबर एफ आर का वैल्यू लेस देन वन होगा तो हम फ्लो को बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो है। सब क्रिटिकल फ्लो है। मेरा फ्लो क्या है? सब क्रिटिकल मीन्स फ्राउड नंबर कम, तो फ्राउड नंबर कम मीन्स वेलोसिटी कम, तो यहाँ पे फ्लो की जो वेलोसिटी होगी कम होगी, क्योंकि एफ आर क्या होता है? फ्राउड नंबर होता है वी अपॉन अंडर रूट जी एल सी। ये लेस देन वन होगा, मतलब वेलोसिटी लेस देन वन है, तो वेलोसिटी एक से कम है तो फ्लो धीरे धीरे चलेगा, इसी को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। बात क्लियर हुई यहाँ से। अब सेकेंड पॉइंट है, एफ आर का वैल्यू अगर वन के बराबर होगा एग्जैक्टली तो मेरा फ्लो जो होगा वो क्रिटिकल फ्लो होगा। क्रिटिकल फ्लो होगा। देखो, ये फ्राउड नंबर का वैल्यू इक्वलेंट टू वन, ये एक कंडीशन है, खाली बस एक कंडीशन। फ्राउड का नंबर लेस देन वन, एक से कम, एक रेंज है, एक से कम बहुत कुछ हो सकता है। एक से कम क्या हो सकता है? 0.5 आधा हो सकता है, उससे भी कम बहुत आगे हम चल सकते हैं, एक रेंज है लेस देन वन, और ये एक कंडीशन है, बस एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब पहली बात ये हो गई, फ्राउड नंबर का वैल्यू लेस देन वन। दूसरी बात, फ्राउड नंबर का वैल्यू इक्वलेंट टू वन होगा तो फ्लो क्रिटिकल होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं फ्राउड नंबर का मतलब v अपॉन अंडर रूट जी एल सी ए, इसका वैल्यू वन होगा, विच इम्प्लाइज डेट वेलोसिटी बराबर होगी अंडर रूट जी एल सी के। इतनी बात क्लियर है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, व्हेन फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन वन, इट मीन्स आवर फ्लो इज ए सुपर क्रिटिकल फ्लो। Supercritical flow. When Froude number is greater than 1, our flow will be supercritical flow. So Froude number greater than 1 means V upon under root GLC is greater than 1. It means V is greater than 1. So V is greater than is a range. ये एक रेंज है, V less than 1 भी रेंज है, बट V is सॉरी, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन वन भी एक रेंज है, वन से ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, वन से कम 0 -1 -2 -3, लेकिन फ्राउड नंबर इक्वलेंट टू वन ये एक खाली कंडीशन है, तो इस पे ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये एक कंडीशन है। यहां से क्लियर हुआ सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो क्या होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख लेना, बस मजा आ जाएगा। अब एक टेबल बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले कुछ फर्दर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये सब क्रिटिकल फ्लो है ना, इस सब क्रिटिकल फ्लो को हम दूसरा नाम क्या देंगे? अगर आपको कभी सब क्रिटिकल ना बोल के आपको स्ट्रीमिंग फ्लो बोला, स्ट्रीमिंग फ्लो, तो उसका भी मतलब होता है सब क्रिटिकल फ्लो। सो सब क्रिटिकल फ्लो इज आल्सो नोन एज स्ट्रीमिंग फ्लो और ट्रैंक्विल फ्लो। ट्रैंक्विल फ्लो। तो सब क्रिटिकल फ्लो के और भी दो नाम है, एक है स्ट्रीमिंग फ्लो, दूसरा है ट्रैंक्विल फ्लो। अब आते हैं यहाँ पे सुपर क्रिटिकल की बात करेंगे। मैंने बोला क्रिटिकल फ्लो एक कंडीशन है, तो इसका ज़्यादा हमें इसके साथ ज़्यादा डील नहीं करना है। सुपर क्रिटिकल को पहला नाम हम देते हैं शूटिंग फ्लो, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है और टोरेंशियल फ्लो। ये दो नाम इसके सुपर क्रिटिकल के और सब क्रिटिकल के दो नाम याद रखना। ठीक है, एडिशनल चीज बताइए। अच्छा, नाउ वी विल मूव अहेड। एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपने याद रखना है, बहुत ही फायदा होगा आपका। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो। अच्छा, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो को मैं वाई लिख सकता हूं, समझ जाएंगे डेप्थ ऑफ फ्लो है ये। ठीक है, वाई लिख लिया। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मैं वी लिख लूंगा, समझ जाना। एंड फ्राउड्स नंबर, एफ आर फ्राउड्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत इजी कराई आपके लिए। अब यहाँ पे अगर टाइप ऑफ फ्लो कौन कौन से हैं? सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो। पहले लिखते हैं हम सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल फ्लो है।
ठीक है, चलो फ्लो लिखा है ऊपर तो ये सब क्रिटिकल फ्लो हो गया। ठीक है, सब क्रिटिकल में फ्लो में सबसे पहले आप लिख लेंगे फ्राउड नंबर 1, सॉरी लेस देन 1 है। ठीक है, तो फ्राउड नंबर क्या है, लेस देन 1। आपको पता है अभी पढ़ के आए फ्राउड नंबर का वैल्यू सब क्रिटिकल के केस में लेस देन 1 होता है। अब डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, देखो डेप्थ ऑफ फ्लो, वाई डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगा। ठीक है, देखो सपोज ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर पानी यहाँ तक, मार्कर चैनल का बेड है। ठीक है, इसके ऊपर किसी हाइट तक पानी फ्लो कर रहा है, वो डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया। और क्रिटिकल होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, जो कम से कम डेप्थ ऑफ फ्लो की लेवल होगी उसको हम बोलते हैं वाईसी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल फ्लो से, क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होती है, और वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कम क्या है, मेरी वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से भी कम है, इसलिए फ्लो बहुत कम चल रहा है, बट डेप्थ ज्यादा है। जब देखो पानी में जब डेप्थ ज्यादा होगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा चैनल का स्लोप है, चैनल का बेड है। ठीक है, यहाँ पे पानी का फ्लो होगा, पानी का ज्यादा फ्लो होगा, वेलोसिटी जब पानी का लेवल ज्यादा होगा, इस तरह जब पानी की डेप्थ बढ़ जाएगी, पानी का लेवल कहीं ऊपर होगा तो फ्लो धीरे धीरे होगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा है। ठीक है, डेप्थ ज्यादा है तो जब फ्लो धीरे होगा तो पानी की वेलोसिटी भी कम होगी। आपने देखा होगा समंदर में, वहां पे पानी चलता है या नहीं चलता हमें बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो। अब रिवर पे देखो, रिवर पे या स्ट्रीम पे देखो, पानी की स्पीड हमें दिखती है क्योंकि डेप्थ कम है। ठीक है, अब इसी डेप्थ को मैं थोड़ा इस तरह करूंगा, स्लोप ज्यादा करूंगा, पानी एकदम फ्लो करने लगेगा क्योंकि डेप्थ कम हो जाएगी। अब पानी एकदम फ्लो करेगा तो डेप्थ कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी होगी आई होप। अब दूसरा पॉइंट है क्रिटिकल क्रिटिकल फ्लो के केस में सबसे पहले लिखेंगे फ्राउड नंबर का वैल्यू एग्जैक्टली बराबर 1 होता है। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो बराबर होता है क्रिटिकल डेप्थ के, और वेलोसिटी भी बराबर होती है क्रिटिकल वेलोसिटी की। ये एक कंडीशन है बस। यहाँ पे वेलोसिटी क्रिटिकल होगी, सबसे मिनिमम वेलोसिटी होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ होगी, और फ्राउड नंबर का वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब बात आती है सुपर क्रिटिकल की। सुपर क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो में ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो कम होता है, सॉरी डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है, हाँ, कम होता है क्रिटिकल डेप्थ से। क्रिटिकल डेप्थ से भी फ्लो का डेप्थ कम है भैया, पानी तेज चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। इसीलिए सुपर क्रिटिकल फ्लो की स्पीड ज्यादा होती है। मतलब ये चैनल है, इसको फर्दर हम इसका बेड क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो पानी एकदम फ्लो करेगा, डेप्थ कम होगी, पानी सारा निकल के जाएगा। आप देख लेना, जिस जिस भी स्ट्रीम में या जिस भी चैनल में पानी तेज चल रहा होगा उस पानी की डेप्थ हमेशा कम होगी। ठीक है, और पानी जब फास्ट चल रहा होगा डेप्थ बहुत कम होगी, तो सुपर क्रिटिकल उसको बोलेंगे, और फ्राउड नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन इसमें 1 होगा। ठीक है, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन का मतलब हुआ वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये 3 कंडीशन, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, पक्का है इस पे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे गेट हो, ईएस हो, एसएससी जेईई हो, कोई भी एग्जाम हो, ये जो कंडीशन बताई इस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको एसएससी जेईई में तो डायरेक्ट पूछा है, बताओ भैया सुपर क्रिटिकल में डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है, कम है या बराबर है, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टेबल है, यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। So I want to conclude this lecture here. So in lecture number 4 we will proceed further, ठीक है, and we will discuss very important topic for GATE examination. हमने आपको बोला फ्राउड नंबर होता है v अपॉन अंडर रूट g इंटू वाई, सॉरी g इंटू आर या एल सी लिखो, एल सी आर डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो फ्राउड नंबर का डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ फ्राउड नंबर क्या है, अंडर रूट ऑफ जी एल सी है, इसी को हम बोलते हैं सी नॉट। सी नॉट हो गया सिलेरिटी, सिलेरिटी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एक होता है वेलोसिटी ऑफ वेव वी डब्ल्यू, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या खाली वेलोसिटी ऑफ वेव बोलेंगे। जब वेव चलेगी तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगी, बट सिलेरिटी अलग चीज है। सिलेरिटी होती है वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू पानी। अगर पानी चल रहा होगा तब वेलोसिटी बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर होगी। आई मीन जब पानी रुका हुआ होगा स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर होगी सिलेरिटी के बराबर होगी। ठीक है, बट पानी अगर फ्लो कर रहा होगा तब इट विल बी डिफरेंट। इसीलिए इस चीज को हम पढ़ेंगे कल, डिनोमिनेटर ऑफ फ्राउड नंबर बराबर होता है सिलेरिटी। अच्छा, दूसरी बात हो गई वेलोसिटी ऑफ वेव वी डब्ल्यू होता है,
जिसको वेलोसिटी ऑफ वेव बोलो या वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन गेट पे आते हैं, आईएएस में आते हैं, एसएससी जेई में भी आया था एक क्वेश्चन। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे फंडा है, वो समझेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने बताए। अगर कुछ समझ नहीं आया, यू कैन कमेंट मी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, I will repeat for you in next lecture. So thanks for being with me till here in this lecture. So take care, keep practicing, keep repeating things. Take care. Bye bye.